of mechanosynthesis. This is just a very complicated way of telling that you are trying to build and attach things to nanoparticle scale levels so that you can enhance precision in oncology. So application, main we have 4. One is diagnosing cancer. इसमें there is classical imaging uses radiation. ठीक है? Radiation is mutagenic. So eliminate these concerns. Optical nanoparticles can be used in the diagnosis. Optical nanoparticles. It is basically like fish. Fish में अपने fluorescence करते हैं ना, PCR में, Sanger में, हर किसी में to increase the visualization we use fluorescence. So optical nanoparticles are technically the same. They can be detected by the ability to be photo excited to produce singlet oxygen for detection. तो ये नहीं समझ में आया तो ऑप्टिकल नैनो पार्टिकल्स का मैंने नीचे वो जो नोट शेयर किया उसमें लिखा है. ठीक है. These small particles, that is nanoparticles, typically known as nanoparticles, provide a variety of potential applications in biomedicine, such as high-resolution bioimaging. These so-called optical nanoparticles are those generating any kind of energy, light, heat, or photoacoustic. All these can be read by a computer system upon illumination with optical radiation. ठीक है. उसके अलावा ये वन. दूसरा MRI के अंदर यूज करते हैं सुपर पेरोक्साइड आयन सुपर मैग्नेटिक आयन पेरोक्साइड नैनोपार्टिकल्स conjugated with 2 types of fluorophores. मतलब light emitting particles. तो fluorescent emitting particles. One of them is attached, one of them absorbs light and emits it in the near infrared region, which you cannot see, and the other is rhodamine B, which absorbs and emits in the visible region, which you can see. So these provide the additional possibility of using fluorescence imaging techniques. Thus, these nanoparticles are excellent candidates for multimodal imaging and more importantly for imaging at the molecular level. Abhi, what I understood from this was using MRI, using CT, using X-ray. X-ray to CT to MRI cross-sectional imaging is basically a more anatomical imaging than X-ray. Okay? Because resolution is improved and you can go into the depth. So उससे भी ज़्यादा depth में जाना हो, we have this. We have imaging at the molecular level. You can actually have nanoparticles go and attach themselves to any tumor which is less than 1 centimeter size का cut off. मतलब what I understood was 1 centimeter size का cut off जैसे होता है ना clinical detection के लिए, ऐसे so it is important for but तरीका थोड़ा complex. So this is one optical nanoparticle. Optical nanoparticle conjugated with 2 types of fluorophores, one that emits light in the near infrared, one that emits light in the visible spectrum, can enhance multimodal imaging and more importantly imaging at the molecular level. So this is number 2. That is in diagnosis. So diagnosis के अंदर 1 and 2 green box, blue box. ठीक है. Then we have cancer treatment. Liposomes and other lipid-based nanoparticles को use करना है. Liposomes we all know are cellular organelles, lipid with lipid bilayers that surround a central aqueous space. Liposomal formulations thus have an increased ability to improve the pharmacokinetics and dynamics of associated drugs. Associated मतलब those drugs which can be delivered using liposomes. A targeting moiety can be conjugated on the outer surface of the lipid bilayer of a liposome and then selectively deliver the drug to the desired site of action. इसके examples already अपने हैं हमारे पास. Liposomal doxorubicin तुमने देखा रहेगा. जिनको doxorubicin वगैरह की sensitivity आती है या second line में भी ये लोग कभी-कभी करते हैं. Liposomal doxorubicin use करते हैं. So it is basically enhancing the chemotherapy drug delivery. तो ये सारे chemotherapy agents हैं. ओवरी में देते हैं ना. हाँ, ओवरी में ही देते हैं, पर वो कब देते हैं वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि सेंसिटिविटी होती है तो देते हैं या कैसे देते हैं. रिकरेंट और इन कैंसर रेकरेंस. हाँ. फिर है तीसरा
पॉलीमरिक नैनो पार्टिकल, इसका भी एग्जांपल पता है। पॉलीमर, सी लाइपोसोमल नैनो पार्टिकल्स एंड पॉलीमरिक नैनो पार्टिकल्स में फर्क सिर्फ इतना है, ये थोड़ा ज्यादा छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, दैट इज इट, पर है नैनो पार्टिकल। तो नैनो पार्टिकल्स विद नो सरफेस मॉडिफिकेशन आर यूजुअली कॉट बाय द रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, रिकॉग्नाइज्ड एज फॉरेन एंड देयरफॉर डिस्ट्रॉयड टू ओवरकम, मतलब बेसिकली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड। To overcome this problem, nanoparticles can be coated with hydrophilic polymers, water-soluble polymers, to make them water-soluble. This coating can efficiently protect them from destruction and therefore enhance their bioavailability. Polymers used could be natural or synthetic. Albumin अपने use करते हैं, nab-paclitaxel का नाम सुना रहेगा, ठीक है? तो nab-paclitaxel. So these are polymeric nanoparticles already used in developing clinicals. तो ये हो गया तुम्हारा 3. So one is diagnosis के लिए, इसमें अपन ने 2 देख लिए, optical nanoparticles and spions. ये 2-3 वर्ड्स है ना, ऐसे कैपिटल में लिख के अंडरलाइन कर देना, तो एग्जामिनर वैसे भी पढ़ते नहीं है इतना सब कुछ, तो वर्ड्स भी दिखेंगे तो अच्छा रहता है। कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर लाइपोसोम्स एंड पॉलीमरिक पेस्ट। थर्ड है तुम्हारा, ये मेरे को नहीं समझ में आया इसलिए मैंने लिखा नहीं, मतलब इसका एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एग्जाम्पल नहीं समझ में आया। तीसरा है बेटर ड्रग डिलीवरी। बेटर ड्रग डिलीवरी बाय एनहांस्ड परमिएशन रिटेंशन इफेक्ट, ठीक है? ये देखो, नैनो थेरापेटिक प्लेटफॉर्म्स का सिलेक्टिव डिलीवरी डिपेंड्स ऑन द पैसिव टारगेटिंग ऑफ ट्यूमर्स थ्रू द एनहांस्ड परमिएबिलिटी एंड रिटेंशन इफेक्ट। ये फिनोमेना क्या है? ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट का जो अलग रहता है, ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट उसका यूज करता है। ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट इज डिफेक्टिव इन द टर्म्स ऑफ lymphatic drainage and increased tumor vasculature permeability. This we know, angiogenesis in tumor microenvironment is always defective and permeable. This facilitates the accumulation of nanoparticles in the tumor. So when you use nanoparticles, this defective permeability of the tumor actually enhance the delivery of these nanoparticles into the tumor. So that is passive, क्योंकि active तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ nanoparticle बना रहे हो, वो वहाँ पे ज़्यादा ये रहेगा, accumulate होगा. So additionally, the timing or site of drug release can be controlled by using external or internal trigger mechanisms such as ultrasound, pH, heat और material composition itself. जैसे ये बस समझने के लिए, जैसे अपने पास ये रहता है ना, गैस्ट्रिक एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स रहती है ना, वो एंट्रिक कोटेड क्यों होती है? कि वो स्टमक में डिसॉल्व नहीं होगी, वो इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होगी. इट इज लाइक दैट ओनली. यू कैन ऑलवेज create a nanoparticle and layer it with something that will disintegrate only when it reaches the particular organ of interest, or you can coat a nanoparticle with some sort of a substance that gets active. जैसे अपन ने photodynamic therapy पढ़ा था ना, वो जो रेडियो जो फोटो सेंसिटाइजर है उसके ऊपर तुम ड्रग डालते हो और वो जाके एक्यूमुलेट होगा ट्यूमर के अंदर, फिर तुम उसी एरिया पे पूरे ब्लड में एक्यूमुलेट होगा, पर ट्यूमर के अंदर ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, और उसी के अंदर तुम बाद में उसके ऊपर लाइट डालते हो, सो दैट गेट्स एक्टिवेटेड एंड डिलीवर्स इट्स रेडिएशन और ड्रग व्हाटएवर. सो इट इज लाइक दैट ओनली. You can create products and put it on the nanoparticles that get activated particularly at a particular pH, or after delivering heat at that particular site, or the material can be coated with something that disintegrates only after reaching a particular site. So with all this you can enhance even more the delivery of therapy using nanoparticles into the tumor. तो ये लिखना ऐसे है, ये समझने के लिए खाली पता है. And then the last, Good morning, ma'am. for delivering or augmenting radiation therapy. बढ़िया. इसमें क्या है? The nanoparticles with high atomic number can enhance the Compton and photoelectric effects of radiation, therefore enhance the radiotherapy efficacy. Other platforms make use of nanoparticles that release drug upon X-ray radiation, enabling localized. This is just like photodynamic therapy की तरह ही है. तो इसी का उसने लिखा है an effective anti-cancer procedure for superficial tumors that relies on tumor localization of a photosensitizer followed by its light activation to generate the reactive oxygen species. तो same है, upon X-ray some nanoparticles that contain these molecules can emit visible light photons. We are not talking about
just visible light. We are talking about radiation. तो radiation का photon locally at the tumor site to generate reactive oxygen species. ये अपन ने जो photodynamic therapy के अंदर पढ़ा था ना, मैं recently कौन से टॉपिक में पढ़ाया था मुझे याद नहीं है, पर पढ़ा था ना, टिपिकल वही इफेक्ट है, तो लिखना यही है. This approach serves as an alternative therapy for cancer cells that have become radiotherapy resistant. Because if you have a tumor and you are giving it radiation, for example, lymph nodes are usually radio resistant in general. And if for cancers which are not responding, for head and neck cancers, not all cancers definitely respond to radiation. So कोई radiation therapy को resistant हो गया है, तो आप nano particles use करके उसका therapy और precision के साथ कर सकते हो. You can use nanoparticles and layer it with something that enables them, जैसे इसमें था, that enables them to accumulate in the tumor itself. फिर उस चीज को आप एक्साइट कर सकते हो. अगर आप उसमें फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस डाल दिया तो आप लाइट मार के उसको एक्साइज कर सकते हो, एंड दैट एक्साइट कर सकते हो, और उसको एक्साइट कर दिया तो उसके अंदर जो रेडियोथेरेपी एजेंट होगा वो वहां पे एक्टिवेट करके उसको रेडिएशन देगा. तो इट इज लाइक इम्प्लांट ब्रेकिंग थेरेपी ऑल्सो. मतलब इट इज कंबाइनिंग ऑल प्रिंसिपल्स of nanoparticles, of brachytherapy, of tumor vasculature, सबका प्रिंसिपल कंबाइन करके आप बेसिकली ये उसको रेडियोथेरेपी रेजिस्टेंट जो ट्यूमर्स हो गए हैं उनको आप प्रिसिशन लेवल पे टारगेट कर सकते हो. एंड देन द लास्ट इज डिलीवरिंग जीन थेरेपी. ये नया है, ये अगर रीसेंट एडवांसेस में कभी आ गया कभी से, आई डोंट नो क्या पूछ सकते हैं रीसेंट एडवांसेस में. The value of nanomaterial based delivery has been apparent for new types of therapeutics, particularly those using nucleic acids. So nucleic acids, which we know, DNA, RNA, highly unstable in systemic circulation and therefore sensitive to degradation. These include DNA, RNA based therapeutics such as small interfering RNAs, mRNAs, microRNAs, which have been reported to have significantly extended half-lives when delivered either encapsulated or conjugated to the surface of nanoparticles. So these therapeutics are frequently used to target undruggable cancer proteins. इसका examples ये हैं: designing and characterizing spherical nucleic acids for the delivery of RNA therapeutics to treat brain cancer. Another strategy is tackling vemurafenib-resistant melanoma by directly suppressing drug resistance through small interfering RNA delivery using polymetformin nanoparticles. ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट ये अगर recent advances में आ गया तो एटलीस्ट 2-3 लाइन लिख दिया तो कुछ तो एक मार्क तो मिलेगा. ठीक है. सो नैनो टेक्नोलॉजी, ये अपने को फैट में पूछा था मेरे ख्याल से. डेफिनेशन, एप्लीकेशंस के अंदर यू हैव टेक्निकली यू हैव 3 और 4. वन इज डायग्नोसिस, उसमें आप ऑप्टिकल नैनो पार्टिकल्स का मेंशन करेंगे और स्पियॉन्स का मेंशन करेंगे, ये इमेजिंग के लिए. आप कैंसर ट्रीटमेंट में लाइपोसोम्स एंड पॉलीमरिक, इसमें आपको लाइपोसोमल डॉक्सोरोबिसिन का एग्जांपल याद रखना है. लाइपोसोम्स के साथ क्यों कॉन्जुगेट करते हैं, पॉलीमरिक के साथ क्यों कॉन्जुगेट करते हैं, एग्जांपल है नैब पैक्लिटैक्सिल. तीसरा है बेटर ड्रग डिलीवरी, उसमें एनहांस्ड परमिएशन रिटेंशन इफेक्ट. उसका मतलब क्या होता है, ट्यूमर के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा एंड वहां पे जाके आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो बाय स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स. फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस वी डिस्कस्ड कि पीएच मैकेनिज्म और ये एंट्रिक कोटेड फॉर्मुलेशंस टैबलेट्स के ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसी को आप बेसिकली लो स्केल पे जाके नैनो पार्टिकल्स के साथ कॉन्जुगेट कर रहे हैं. चौथा है फॉर ऑगमेंटिंग रेडियोथेरेपी, उसमें टेक्निकली इट इज लाइक फोटोडायनामिक थेरेपी का इफेक्ट, एंड द एडवांटेज इज नैनो पार्टिकल्स विद हाई एटॉमिक नंबर कैन एनहांस द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी while reducing the existing radiotherapy dosage and subsequent toxicity to surrounding tissue. ठीक है. और ये recent advances में अगर समझ में आया, याद रहा तो. बढ़िया, वो पढ़ा देता हूँ. ठीक है, दिख रहा है. ये एक साइट भी अच्छा है, इम्यूनो या कीमो से रिलेटेड मोस्टली स्लाइड्स मिल जाते हैं इधर. CCO है ना, ये क्लिनिकल ऑप्शंस. सो कहाँ से आया CDK4/6 का कंसेप्ट? हमने देखा कि जब इन्होंने फॉलो किया जो HR मतलब हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव, HER2 नेगेटिव जो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर्स थे, उनको फॉलो करके देखा इन्होंने
और हैजार्ड रेट देखा विद आफ्टर ईयर्स फ्रॉम डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है ना। तो रिस्क ऑफ फर्स्ट रेकरेंस इन्होंने फॉलो किया और फॉलो करने के बाद इन्होंने रिजल्ट निकाला कि रिस्क किसके साथ ज्यादा है, जो हार्मोनल थेरेपी से रेजिस्टेंट थे, लार्जर ट्यूमर साइज था, नोड पॉजिटिव थे, हाई ग्रेड थे, हाई प्रोलिफरेशन इंडेक्स था, ठीक है, लोअर ईआर मतलब जो लो ईआर में थे, या प्रोजेस्टेरोन का लेवल 1 to 10 वाले, और ल्यूमिनल बी, R2 एनरिच्ड, बेसल लाइक, ये सब में प्रोलिफरेशन ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये सब में रिकरेंस रिस्क ज्यादा था। तो फिर इनका क्या करना है, ऐसा करके आगे प्लानिंग हुआ। ये अपना सेल साइकिल पढ़ा हुआ है, वापस से एक बार रिवाइज हो जाएगा। ये अपने को पता है डिफरेंट चेक पॉइंट्स, वापस देख लेते हैं एक बार। G1S सॉरी इधर लिखता हूँ। ठीक है, वही अपना DEAB और 46D के साथ है, 46D के साथ ना, D के साथ है, छोटा लिख देता हूँ। ओके, ये हो गए। तो यही सब इसमें दिया हुआ है साइकिल में पूरे में, है ना। ये अपना इधर से देख लो G1, तो G1S के बीच में D और 6 और E, CD के 2, ठीक है। फिर A आता है, मेनली एस फेज में है, पर यहाँ इसके इनिशिएशन में भी इन्होंने इसमें भी दिया है, तो अपने को ज्यादा डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं, अपने ये याद रखना, ठीक है। ये भी रहता है क्योंकि दोनों है ना, अपन ने देखे ये में 2 और 1, तो ये 2 है, ये 1 वाला है, तो ये यहाँ रहता है। उसके बाद G2M में ये है ही। ओके, तो एस्ट्रोडायन या जो एस्ट्रोजन वगैरह है वो कैसे एक्ट करते हैं, सेल साइकिल कैसे प्रोलिफरेट करवाते हैं, उसमें इन्होंने देखा कि ये सारे जाके एस्ट्राडायोल एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे जाएगा, एस्ट्रोजन रिसेप्टर से न्यूक्लियस में जाएगा इंफॉर्मेशन, और ये एक्ट करेगा साइक्लिन CD के 4-6 के थ्रू, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हम इससे तो ट्राई कर रहे हैं ET से, अगर हाई रिस्क पेशेंट है तो इस पे भी अपन टारगेटेड एजेंट दे देते हैं, तो ये टारगेटेड एजेंट बना लिए इन्होंने। तो इससे इन्होंने क्या देखा कि डाउनस्ट्रीम एस्ट्रोजन सिग्नलिंग का इनहिबिशन करने से कॉम्बिनेशन थेरेपी जो दी अपन ने वो सिनर्जिस्टिक एक्शन दे रही थी, अच्छा रेस्पॉन्स दे रही थी अगेंस्ट हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ट्यूमर्स, ठीक है। तो फिर स्टडी आई मोनार्क की, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले अपने को पार्प इनहिबिटर पूछ रहे थे 1-2 बार, और उसके बाद ओलंपिया ट्रायल दे दिया, अभी CDK4/6 पूछ रहे हैं, तो ये मे बी हिट लिस्ट में आ सकता है, मोनार्क की ट्रायल, ठीक है। सो दिस इज एडजुवेंट एबेमासिक्लिप्स होते हैं सारे ये जो CDK4/6 है, प्लस विद एंडोक्राइन थेरेपी इन हाई रिस्क नोड पॉजिटिव हार्मोन रिसेप्टर R2 नेगेटिव अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। इन्होंने 2 कोहॉर्ट लिए, पहला कोहॉर्ट था मोर देन 4 इक्वल और मोर देन 4 एक्सियल लिम्फ नोड, ठीक है, और 1 to 3 पॉजिटिव लिम्फ नोड्स विद ग्रेड 3 एंड ट्यूमर इक्वल और मोर देन 5, मतलब ऑलमोस्ट स्टेज 3 वाला मान लो, स्टेज 3 हो गया, ठीक है। दूसरा कोहॉर्ट में इन्होंने Ki-67 पे जोर दिया कि नोड 1 to 3 है, बट Ki-67 इज 20 और मोर देन 20, ठीक है, ग्रेड भी इनमें कम है, ट्यूमर साइज भी कम है, जस्ट प्रोलिफरेशन इंडेक्स में Ki-67 बढ़ा हुआ था। इन पे इन्होंने देके देखा, 2 आर्म रखे, एक में दिया एबेमासिक्लिब प्लस ET और दूसरे में सिर्फ ET, ठीक है। प्राइमरी एंड पॉइंट रखा DFS। चलो आगे, तो इन्होंने देखा, ये देख लो 5 इयर्स पे देयर वाज मार्क्ड डिफरेंस, 7.6% का डिफरेंस था DFS में, ठीक है। इतना डिफरेंस था, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल भी एक तरफ ही है, लाइन ऑफ यूनिटी से इधर ही है, मतलब स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है। सो दे प्रूव्ड इट कि भाई देखो, ठीक है ना, कितना 2 इयर्स
2 years ऑफ abemaciclib ट्रीटमेंट। ठीक है, और नीचे क्या लिया, बेनिफिट अक्रॉस ऑल पेशेंट इन डिजीज सब इंडिपेंडेंट ऑफ KI67, मतलब KI67 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, इंडिपेंडेंट था, उससे कम हो ज्यादा हो, बट देन नोड मोर देन नोड ग्रेड 3 साइज एंड नोड वो मैटर कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें अपने को लिए ज्यादा नहीं है। तो इसके बाद अप्रूवल, एफडीए ने अप्रूव कर दिया इसके बेस पे। ठीक है, एफडीए ने किसके बेस पे अप्रूव किया, नोड पॉजिटिव, हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव, हाई रिस्क ऑफ रेकरेंस, बट KI67 को ड्रॉप कर दिया उन्होंने बाद में, पहले लिया था देन बाद में ड्रॉप कर दिया कि उसको देखने की जरूरत नहीं है, आप इसके बेस पे दे दो। एस्को ने क्या बोला, एस्को ने बोला कि सेम वही जो इन्होंने लिए थे, 4 और मोर देन 4 और 1 to 3 लिम्फ नोड पॉजिटिव, और इसने एस्को ने KI67 को लिया है। एंड और है ना, एंड और KI67 एस्को ने लिया पर NCCN ने फिर हटा दिया। ठीक है ना, 4 और मोर 1 to 3 विद दिस, इन्होंने वापस KI67 को टाटा बाय बाय कर दिया। ठीक, फिर हटा दिया, तो अपन कोट कर सकते हैं कि एस्को लेता है, ये नहीं लेता है। ठीक है, दूसरा स्टडी आया फिर नटेली। नटेली में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरमीडिएट भी साथ में ले लिए, उसमें सिर्फ हाई रिस्क ही ले रहे थे वो, इन्होंने इंटरमीडिएट भी ले लिए। इंटरमीडिएट में वो सारे आ गए फिर ग्रेड 1 2 KI67 के बेस पे, ये सब ना, स्टेज 2A भी आ गया, मतलब लेस देन 5 सेंटीमीटर, और ग्रेड 2 भी आ गया, और हाई रिस्क वाले तो थे ही ऑलरेडी, उसमें तो प्रूवन था ही। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, वही इन्होंने किया, इन्होंने राइबोसिक्लिब प्लस ET दिया, और दूसरे में इन्होंने दिया नॉन स्टेरॉइड AIs। तो उन्होंने AI देने में या और एंडोक्राइन थेरेपी देने में कुछ ऐसा क्लासिफाई नहीं किया कि यही देना है, पर नेटेली ट्रायल में ये बोले कि सिर्फ नॉन स्टेरॉइडल देना, लेट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल। ठीक है, इन्होंने भी DFS रखा, एंड पॉइंट DFS रखा, इनका भी डिफरेंस है पर उतना प्रोमिनेंट नहीं है, दो इट इज ऑल्सो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। तो ये भी दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इंटरमीडिएट ग्रेड भी लिया था, तो कि ठीक है इंटरमीडिएट ग्रेड में इतना रेस्पॉन्स भी ठीक है, सो दे ऑल्सो अप्रूव्ड इट फॉर इवन इंटरमीडिएट ग्रेड। ठीक है, ये पूरा इसका डिटेल में देखें अगर अपन, तो सब तरफ इधर ही पड़ रहा है ये, है ना, टुवर्ड्स दिस राइबोसिक्लिब प्लस AI। तो हर ग्रुप में दिस इज बेटर, कंसिस्टेंटली परफॉर्म्ड इट बेटर। ठीक है ना, इंक्लूडिंग इवन स्टेज 2 3 N0 N+, जो भी कैटेगरी था सब में इसने अच्छा परफॉर्म किया, मतलब ये सबको दे सकते हैं। और इसके साइड इफेक्ट में देखें तो एबेमासिक्लिब का मेन है डायरिया, ठीक है ना, और राइबोसिक्लिब का है न्यूट्रोपीनिया, और मतलब लीवर रिलेटेड एंजाइम्स वगैरह जो बढ़ जाते हैं, QTC प्रोलॉन्गेशन, ये सब। ठीक है, तो एबेमासिक्लिब में A भी आता है, B भी आता है, C भी आता है। ठीक है ना, D नहीं आ रहा बस, तो D इसके साइड इफेक्ट में आ गया। ओके, तो ABCD पूरा इसका हो गया, इससे याद रह सकता है अपने को। ठीक, तो इसके बेस पे प्रूव हो गया कि अपन क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं हाई रिस्क और इवन इंटरमीडिएट ग्रेड वाले हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव HER2 नेगेटिव को CDK4/6 इनहिबिटर। ठीक है, अभी कॉम्प्लिकेशन अपने को जस्ट याद रखना, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की मतलब नहीं है। डाइटरी मॉडिफिकेशन, लो फाइबर लो फैट स्मॉलर फ्रीक्वेंट मील्स, ऐसा है। न्यूट्रोपीनिया, ये सब अपने ज़्यादा काम का नहीं है। ठीक है, ठीक है, हेपेटोटॉक्सिसिटी, डोज रिडक्शन, ये देख लेते हैं अपन। एबेमासिक्लिब एंड राइबोसिक्लिब का हेड टू हेड कंपैरिजन किया इन्होंने, तो डोज में भी याद रखना ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या क्राइटेरिया लिया अपना, रेंडमाइजेशन किया 16 मंथ्स फ्रॉम द सर्जरी, और इन्होंने विद इन 12 मंथ्स। ठीक है ना, और इन्होंने मेन अपने को ये याद रखना है, दिस इज फॉर 2 years, एबेमासिक्लिब 2 years के लिए, राइबोसिक्लिब 3 years के लिए। ठीक है, बस मैंने ये याद रखना है। बाकी साइड इफेक्ट अपने को पता है, इसका डायरिया, उसका न्यूट्रोपीनिया, बाकी सब लिख देंगे, हेपेटाइटिस ये वो। ठीक, तो अभी क्या अपना ये एडेरेंस छोड़ देते हैं। क्या रिजल्ट आया कि 4 और मोर पॉजिटिव लिम्फ नोड है, एंड ब्राका अगर वाइल्ड टाइप है तो अपने को एडजुवेंट कीमो
ईटी एंड एबेमासिक्लिब देना है। अगर म्यूटेटेड है तो फिर ओलापारिब देना है, फिर इसकी जगह ओलापारिब लगेगा, ठीक, फॉर 1 ईयर। अगर 1 to 3 नोड पॉजिटिव है और प्री मेनोपॉजल है तो कीमोथेरेपी एंड एंडोक्राइन थेरेपी। फिर इसका ये ट्रायल चल रहा है, मतलब इस पे क्या रिजल्ट देंगे वो आगे वही जानते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल में अपने को ऑन्कोटाइप डीएक्स, मेमाप्रिंट या ये सब करके रिस्क स्ट्रेटिफाई करना है। अगर लो रिस्क है तो ईटी अलोन, हाई रिस्क है तो कीमो विद ईटी साथ में, दोनों में। अगर ब्राका म्यूटेटेड है तो ओलापारिब देना है, ठीक। ग्रेड 3 है और साइज मोर देन 5 है तो एबेमासिक्लिब देना है, और इससे कम है अगर नॉट ग्रेड 3 मतलब ग्रेड 2 है या साइज छोटा है तो उसमें भी अपन राइबोसिक्लिब दे सकते हैं, नैटेली ट्रायल ने बोला ये, तो वो देना है। और किसी को बोवल कोमॉर्बिडिटी हो तो एबेमासिक्लिब डायरिया करा रहा था, तो वैसे में बोवल कोमॉर्बिडिटी में एबेमा नहीं दे सकते अपन, तो इवन इन दिस कैटेगरी इफ पेशेंट इज हैविंग बोवल एबनॉर्मलिटीज आप राइबोसिक्लिब दे सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, ये टेक अवेज वही है ऑलमोस्ट, सो रिवाइज कर लेते हैं। टेक अवेज में ज़्यादा कुछ नहीं है। CDK4/6 का कॉन्सेप्ट आया इससे कि ये जो डाउनस्ट्रीम एक्ट करते हैं वो 4/6 पे आके एक्ट करता है एस्ट्रोजन, इसलिए अपन सिनर्जिस्टिक एक्शन के लिए दोनों को टारगेट कर दिया, ठीक है। ट्रायल है वो मोनार्की, इंपॉर्टेंट है मोनार्की। मोनार्की में इन्होंने सिर्फ हाई ग्रेड वाले या हाई रिस्क वाले लीजन पेशेंट्स लिए, ठीक है। ग्रेड 3 4 और मोर देन 4 नॉट साइज मोर देन 5 इक्वल टू और मोर देन 5, बस ये है। मोना ने बीमा कराया, ऐसे याद कर लो। मोना ने बीमा कराया तो मोना इज अबीमा साइक्लिप। मेरे एग्जाम में मोनार्की अबीमा साइक्लिप है, ये भी याद नहीं आएगा। मैंने ऐसे याद रखा, मोनार्क को पांडवस में भीम रहता ना, ही इज मोनार्क। खतरनाक भाई। चलो ठीक है, याद रख सकते हैं इसे। ये क्वेश्चन कैसे आने वाला है, मतलब व्हाट इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन जिसका हम लोग CDK4/6 इनहिबिटर्स CDK4/6 आया हुआ है बार अभी, मतलब पहले पार पा रहा था ना, जैसे पार भी वैसे ही अभी इन्होंने ये पूछना शुरू किया है, तो पार पाने के बाद उन्होंने उससे रिलेटेड ट्रायल पूछ लिया ओलंपिया। तो मे बी ये पूछ रहे हैं बार बार, तो ट्रायल की तरफ जा सकते हैं। पहले वो डायग्राम डाल देते हैं न्यूक्लियस में। एंडोक्राइन थेरेपी के साथ साथ अभी ये भी शुरू हुआ है अबीमा साइक्लिब और CDK4/6 इनहिबिटर। जब मैंने एक क्लास पढ़ाई थी तो उसमें भी एक डायग्राम था, वो भी देख लेना, वो फ्लो चार्ट भी अच्छा है ऐड करने के लिए। भैया मेरा एक जनरल सवाल है, ये जो हम हाई रिस्क डिसाइन करते हैं, ये हाई रिस्क हम डिसाइन करते कैसे? वो ही ना ग्रेड वाला, ग्रेड और साइज ये है ना, ये रहा। ये वो रूल ऑफ 4 होता है क्या कि ग्रेड 1 3 सेंटीमीटर से बड़ा, ग्रेड 2 2 सेंटीमीटर से बड़ा, ऐसा? नहीं, सीधा ये 4 और मोर नोड पॉजिटिव और 1 to 3 नोड पॉजिटिव विद ईदर साइज इज मोर और ग्रेड इज 3। ठीक है। अपना हाई रिस्क डिफाइन करती है। राकेश एक बार वो कॉन्सेप्ट वापस समझा देना, वो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या था? देखो, जो हाई रिस्क वाले इन्होंने जो ये किया ना, ये फॉलो किया इन्होंने, तो इन्होंने देखा कि जो लार्ज साइज है, मतलब 5 सेंटीमीटर से बड़े हैं, T3, ठीक है, और हायर ग्रेड है, ग्रेड 3 है, ठीक है, नोड पॉजिटिव है, तो मोर और 4 और या 1 to 3 के साथ जो कॉम्बिनेशन में आ रहा था, ठीक है ना, इधर साइज और ग्रेड 3, ठीक। तो इसमें इन्होंने देखा कि रेकरेंस रिस्क ज्यादा है, तो इन्होंने बोला कि क्या कर सकते हैं, तो पूरा पाथवे जब डिटेल में इन्होंने देखा कि एस्ट्रोजन या हार्मोन्स कैसे करा रहे ब्रेस्ट कैंसर, तो सेल साइकिल में ये एक्ट कर रहे हैं। एस्ट्रोजन जो आता है एस्ट्राडायोल थ्रू द एस्ट्रोजन रिसेप्टर, इट एक्ट्स ऑन CDK4/6, ठीक है ना। CDK4/6 को एक्टिवेट करेगा तो सेल साइकिल प्रोलिफरेशन बढ़ाएगा ना, तो उसके थ्रू ये एक्ट कर रहा है। तो ये तो हम ऑलरेडी टारगेट कर रहे थे एंडोक्राइन थेरेपी देके, तो उन्होंने इसको भी टारगेट किया, तो वी आर टारगेटिंग बोथ, तो सिनर्जिस्टिक एक्शन आ गया इन दोनों का देने से, ठीक है। ठीक, तो मतलब अभी जो तुमने लास्ट में रिकमेंडेशन का चार्ट बताया ना, उसमें पार्क इनहिबिटर और अभी ओवरऑल एंडोक्राइन का है, ये जो ER पॉजिटिव पेशेंट है ना, उसमें अभी कुछ दिनों बाद बोलेंगे कीमोथेरेपी दो ही मत, डायरेक्ट। ऐसा है ना कि दिव्यांग ओनली फॉर ER पॉजिटिव ट्यूमर्स, ये पूरा कीमोथेरेपी देने के बाद फर्स्ट यू डू ब्राका म्यूटेशन,
BRCA mutated है तो olaparib दोगे, there is no role for CDK4 inhibitors. अगर No BRCA role. mutated नहीं है तो then you add CDK4 inhibitors. नहीं, what I'm asking is BRCA BRCA mutated के अंदर CDK4/6 का काम क्यों नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, it's not about किया नहीं लाइक डुअल थेरेपी देना पड़ेगा ना, और दोनों का कॉम्बिनेशन का क्या रिजल्ट है अपने पास डेटा नहीं है कि दोनों दे रहे हैं। You are giving a dual therapy when depending वो second option क्या है वो BRCA पे डिपेंड करता है कि abemaciclib पे या olaparib, इतना ही। इन दोनों को कंबाइन करने का मतलब अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, क्योंकि BRCA इज मोर इम्पोर्टेंट ना, ये ज्यादा रिस्क वाला फैक्टर है। ठीक, बराबर। Yeah, the driver is BRCA, then you target the BRCA. हाँ, BRCA mutated है तो olaparib, नहीं है तो CDK4, that too high risk वालों में नीचे BRCA mutated तो सिर्फ olaparib दे रहे, wild type है तो you can add abemaciclib और ribociclib। और सेकेंड लाइन देखने के लिए इसमें NGS टेस्टिंग करा रहे हैं। नीचे आओ, नीचे वाले फोटो है ना सबके पास? नहीं, मेरे को अभी दिख, आई थिंक है, ग्रुप पे तो है मेरे ख्याल से। तो सेकेंड लाइन देने के लिए फिर ये ओनली फॉर हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव, HR नेगेटिव, HER2 नेगेटिव। अगर एक्टिव पॉजिटिव है तो एंटीचिट की तरह ट्रीट करना विद रिस्पेक्ट ऑफ हार्मोनल स्टेटस। मैंने वापस भेजा है ग्रुप पे। जो ESR1 है वो ना लिक्विड बायोप्सी से टेस्ट होता है, वो उससे टेस्ट नहीं होता है, किससे? NGS से। चीज़ें याद रखनी है, पहले WHO आया था, फिर अपनी इंडिया ने 2 चीज़ें उस पर इम्प्लीमेंट की, 2 चीज़ें लाई। सबका एम क्या है कि कम टोबैको को कंट्रोल करना है, जो कि नहीं हो रहा है। तो पहले WHO आया था, उसने बोला था FCTC क्या है? फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। 2003 में लाए WHO। कब लाए? जब इनको लगा कि नहीं, इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने क्या बोला था? WHO ने मॉनिटर टोबैको यूज एंड प्रिवेंटिव पॉलिसी बनाओ, हर एक को बोला था। वार्न अबाउट डेंजर्स, रेज टैक्सेस, जो कि हम सबसे आगे हैं, ऑफर हेल्प हु वांट्स टू क्विट, एनफोर्स बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट। सो WHO ने कुछ गाइडलाइंस दी हाउ वी कैन मैनेज टोबैको मैनेज। तो उन्होंने बोला अले भाई मॉनिटर करो, तुम्हारी पॉलिसीज जो है कुछ चल रही है वो ठीक काम कर रही है, मॉडिफिकेशन करना है। दूसरा बोला वार्न करो सबको कि इससे बहुत कैंसर्स हो रहे हैं। और रेज टैक्सेस, ऑफर हेल्प हु वांट्स टू क्विट, देन एनफोर्स बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट। सो ये WHO खत्म। उसके बाद नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनली 2008 में इम्प्लीमेंट कर दी। तो उसके कंपोनेंट्स क्या है? सो हर एक प्रोग्राम जो भी हम PSM में पढ़ते थे, हमको दिमाग में रखना, हर एक प्रोग्राम का कॉमन है अवेयरनेस, वो प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में ठोकना, इनकॉर्पोरेटेड इन अदर प्रोग्राम्स, स्कूल और ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर। ये हर एक प्रोग्राम अगर आप याद करोगे तो ये हर एक प्रोग्राम का एक कंपोनेंट तो था ही। सो अगर ये याद रखेंगे, कम से कम 8 में से 4 हम लिख देंगे। क्या? अवेयरनेस करना है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अदर प्रोग्राम्स, स्कूल एजुकेशन, ट्रेनिंग अपने हेल्थ वर्कर्स को। ठीक है, सो हो गए 4। और बाकी क्या है? आपको सिजेशन फैसिलिटीज सेटअप करनी है। कैसे सेटअप करनी है? आप डेडिकेटेड टोबैको कंट्रोल सेल्स फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग एस्टेब्लिश करोगे। ओके, और मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन अपना ही सर्वे के लिए प्रोग्राम बनाओगे, और लेबोरेटरी बनाओगे जहाँ पे टोबैको टेस्टिंग हो जाए। ठीक है, ताकि कोई ज़्यादा हार्मफुल तो नहीं है, कुछ कंटेमिनेशन तो नहीं है ज़्यादा। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम? सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट अप्रूव्ड 2007-2008। उसके कंपोनेंट्स क्या है? वही अवेयरनेस, स्कूल, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, and incorporating other programs, cessation facility, how cessation facility by establishing control cells for effective monitoring evaluation of adult tobacco survey, और laboratories for tobacco testing. So ये components of national tobacco control program के। उसके बाद इंडिया ने कोटपा लाया। What is कोटपा? कोटपा is Cigarette and Other Tobacco Product Act 2003। ओके, सो इसमें हमको याद रखने 4 प्रोहिबिशन है, 2 मैंडेटरी है।
PA का मतलब प्रोहिबिशन, याद रखना। कोड सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोहिबिट प्रोडक्ट्स एक्ट, ओके। P मीन्स प्रोडक्ट, A मीन्स एक्ट 2003 में। P से याद रखेंगे इसकी 4, it prohibits 4 things and mandates 2 things। प्रोहिबिशन क्या है कोटपा के? प्रोहिबिट स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेस, प्रोहिबिट स्मोकिंग एट एजुकेशन फैसिलिटी, प्रोहिबिट सेल टू लेस देन 18 years, प्रोहिबिट एडवर्टीजमेंट कि भाई एडवर्टीजमेंट ये नहीं करना है, ये हीरो ये पीता है तुम भी पियो तुम भी खाओ, तो ये प्रोहिबिशन है। बट मुझे ऐसे इसमें कुछ नहीं होता है। तो mandatory है depiction of salutary warning on the packets, depiction of tar and nicotine content on packets, clear। so कोटपा क्या है? ये भी टोबैको कंट्रोल ये है प्रोग्राम। इसमें क्या है, एक्ट में उनको पनिश करो जो प्रोहिबिट smoking at public place and school education less than 18 years, advertisement। mandatory में इसमें depiction salutary warning, और salutary warning के packet should contain 85% front and back warning। उसमें बना देना है कैंसर वेंसर का फोटो आगे पीछे, मिनिमम इट शुड कवर 85% ऑफ फ्रंट एंड बैक, क्लियर। तो फ्लो डायग्राम क्या है, जैसे हाउ डज दिस प्रोग्राम वर्क्स? Ministry of Health and Family Welfare is the top boss. It controls state tobacco control cell. State tobacco control cell किसको करती है? District tobacco control unit। ये कौन सा? ये वो सेल है ये जो हम यहाँ पे पढ़े थे, establishment of dedicated tobacco control cells, यही है district। जो Ministry of Health and Family Welfare controls state tobacco control cell, और डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाले फिर डिस्ट्रिक्ट में जाके इम्प्लीमेंट करते हैं टोबैको कंट्रोल यूनिट्स। तो टोबैको कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोटपा स्कूल प्रोग्राम टोबैको सेसेशन, और इसमें आता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म आई कुड मेक। रिवाइज कर देता हूँ। टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम अगर लिखना है, पहले बोलेंगे WHO आया भाई, पहले उसने बोला भाई गड़बड़ है, ये चीज़ें करो, मॉनिटर करो, वार्न करो, रेज करो टैक्स, हेल्प करो क्विटिंग जो मानता है, एनफोर्स बैन ऑन एडवर्टीजमेंट। फिर उसके बाद इंडिया में इम्प्लीमेंट होने लगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स NTCP के वही है, सब प्रोग्राम्स का मेन सब क्या है? अवेयरनेस करना है, इसको दूसरे प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट करना है, स्कूल एजुकेशन में अपने स्टाफ को ट्रेन करना है, जो कि इम्प्लीमेंट करेंगे। एक्स्ट्रा क्या याद रखना है? एक यूनिट टोबैको कंट्रोल सेल एस्टेब्लिश करनी है। वो जब एस्टेब्लिश की तो उसको लेबोरेटरी भी चाहिए, तो लैब टेस्टिंग के लिए होना चाहिए। सेसेशन फैसिलिटी रिहैबिलिटेशन करनी है, मॉनिटरिंग करना है क्या चल रहा है। हो गया, इतना छोटा था। अब नीट का एक और टॉपिक था ना? दो थे ना कल के। मेरा एपोप्टोसिस रेडी है, पर मेरे को उसके स्लाइड्स मर्ज करने हैं। तो 2 मिनट के ब्रेक में करूँ तो सट्टा पढ़ा सकती हूँ। बताओ जल्दी, या फिर कल पढ़ाऊँ? ठीक है, ओके।
यही करना पड़ेगा ना अगर टुमारो पढ़ाना है।